ओके, सो ट्रीज हमने देख दी. Trees, we have grammar being made from production rules. So these are some example of production rules. Production rules हमारे पास basically दो types के होते हैं. The first one is the production rules which help create terminals, and usually the convention is that आप यहाँ पे part of speech से आप actual vocabulary की तरफ move करते हैं. As an example, from the right hand side, you can see some examples where part of speech के साथ आपके साथ associated है the words. और दूसरा आपके पास प्रोडक्शन रूल्स होते हैं जो नॉन टर्मिनल्स को डील करते हैं, and the non-terminals are then the actual structures of part of speech themselves. So it's like a part of speech and higher order part of speech. Okay? And इस तरीके से फिर ये hierarchies होती है. आप नीचे vocabulary से लेके ऊपर लेवल तक तो part of speech की तरफ जाते हैं. और अब एक सवाल मैं आपसे करता हूं कि part of speech से ऊपर क्या होता है? What is above part of speech? Sentence ना? That means ये जो higher order part of speech है, ये आपको ultimately sentence level तक आपको लेके जाना है. That means at the beginning, where everything starts, is something called your sentence, जिससे आपके पास higher order part of speech के terms आएंगे, और फिर ये higher order part of speech से आपके पास part of speech and फिर POS से फिर आपके पास terminals. That is the kind of a hierarchy of all of the production rules. सबसे important जो होता है वो आपके पास ये होता है, because this actually controls the structure and the grammar representations. अब ये production rules तो आपके पास आ गए, ये गिवन होते हैं by the way, और गिवन कहाँ पे होते हैं? ये गिवन होते हैं आपके पास in something called tree banks. So in a tree bank, जिस तरीके से आपके पास corpus data sets corpus, ये आपके पास मुख्तलिफ repositories में आपके पास पड़े होते हैं. एक के साथ तो आप जो assignment lab based assignment है उसमें भी आप देख रहे हैं, तो उसमें आपने ब्राउन कॉर्पस, पेंसिल्वेनिया की कॉर्पस, समथिंग कॉल्ड द गुटेनबर्ग लाइब्रेरी, ये सारे आप उसके साथ काम कर रहे हैं. पेंसिल्वेनिया वॉल स्ट्रीट जर्नल इनकी ट्री बैंक है, और उसमें इन्होंने तकरीबन 50,000 सेंटेंसेस का एक ट्री बैंक बनाया है. एक सेंटेंस एक ट्री. ओके, सो वी हैव like one sentence, one tree. How many sentences? 15. If you follow that logic, we can have an infinite amount of sentences. Anything is possible. But we can't afford to have an infinite amount of trees. Reason being is that if you are looking for grammar, हम grammar की checking कर रहे हैं, तो आप सोचे आपने कोई sentence type किया. Do you really think Microsoft Word at the back end is going through an infinite amount of trees? No. No. In fact, वो कोई ऐसी arrangement ढूंढ रहा है कि वो minimal amount of trees से
ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस को कवर कर सके. That's the objective. So as an example, if let's suppose these are the trees which are generated, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि if you look at patterns, दो patterns आपके पास, बाकी दो trees आपके पास ये वाले, and if you follow the patterns, तो maybe आप patterns में देख सकते हैं कि मेरे पास ये तो pattern है, ये कितनी बार यहाँ पे appear हो रहा है? You can see the pattern appearing here, 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 and here. चार बार आपके पास आ रहे हैं. So overlapping आपके पास आ रहे हैं. कि अगर मैं यहाँ पे t को मिनिमम सबसेट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई ट्री मेरे पास बन गई है और यहाँ पे भी मेरे पास कोई ट्री बन गई है. तो इसमें अगर कोई एरिया ओवरलैप कर रहा है, so to speak, why not I create a production rule for that overlapping area. ठीक है? सब उस तरीके से ये आपके पास एक यूनिफॉर्मिटी की तरफ जाती है कि हम पैटर्न्स आइडेंटिफाई करें और जहां पे आपके पास ओवरलैपिंग पैटर्न्स आपके पास अगर होते हैं तो उनको हम समहाउ ट्री से हम प्रोडक्शन रूल्स की तरफ निकालते हैं. तो बेसिकली ये आपके पास एक रिलेशनशिप है. प्रोडक्शन रूल्स और ट्रीज ये दोनों एक चीज नहीं है. प्रोडक्शन रूल से आपके ट्रीज बनते हैं और वाइस वर्सा ट्रीज के अंदर से फिर आप प्रोडक्शन रूल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो यू नीड अगर आप ग्रामर बनाना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट टू मेक अ ग्रामर ऑफ योर ओन, लेट्स सपोज पेंसिल्वेनिया के ट्री बैंक में इंग्लिश के लिए है और आप कहते हैं कि मैं उर्दू के लिए ग्रामर बनाना चाहता हूं. व्हाट विल यू डू? You will first take your sentences, convert them into trees. Then from those trees, you create production rules. ठीक है? And the idea would be कि आपके पास जो production rules हैं, अब आपके पास यहाँ पे sentences की तादाद ज्यादा हो रही है. जितनी आपके पास sentences की तादाद ज्यादा हो रही है, आप एक production rules अप्लाई कर दें. तो ठीक है, हो गया, नहीं होगा. तो उस केस में ये क्यों नहीं हुआ? तो उसकी ट्री में जब आप जाके देखते हैं तो शायद वहां पे कोई ऐसी चीज आ गई है कि वो इधर प्रोडक्शन रूल में कवर नहीं है. तो आप जाए और प्रोडक्शन रूल को रिफाइन कर दें और जब रिफाइन हो जाएगा तो उसके बाद जब दोबारा ट्राई करेंगे तो हो जाएगा. तो इस तरीके से आप एक ग्रामर की तरफ, एक यूनिफॉर्म ग्रामर की तरफ आप जाके जा सकते हैं. लेकिन this grammar will only be good enough depending upon how many sentences you provide. 3 sentences, 10 sentences दे के आपका एक पूरी लैंग्वेज में ग्रामर नहीं बन सकता. तो ये सेंटेंसेस कहाँ से आ रहे हैं? जिस सेंटेंसेस भी आपके पास किसी कॉर्पस होगा, ज्यादा जितनी आपके पास कॉर्पसेस होंगे तो उससे आपके पास ये सेंटेंसेस आएंगे. तो अल्टीमेटली दिस प्रोडक्शन रूल्स आर हेवीली डिपेंडेंट अपॉन दिस. तो ये एक इटरेटिव प्रोसेस है और ऑफ कोर्स इस इटरेटिव प्रोसेस में फिर आप लोगों के साथ वर्किंग होती है. ये आपके पास एग्जांपल्स हैं. So in a tree bank, when you look at the storage format, you will see something like this. Okay? In programmatic terms, जब आप एक ट्री बैंक में ट्री व्यू करना चाहते हैं, it doesn't show you those pictures of graphs जिसमें आपके पास trees नजर आते हैं, बल्कि इनफैक्ट आपके पास वहां पे जो रिप्रेजेंट है वो इस किस्म की somehow brackets और इस किस्म की चीजें होती हैं. All of these are in the form of prefix. Prefix notations में आपके पास given होता है. So prefix notation, let's suppose we have this tree and we talk about, let's suppose ये मेरे पास to the light है, to क्या होता है यार? To is empty and this is determinant. इस केस में to ये वर्ब फॉर्म में आपके पास आ रहा है. Okay?
और यहाँ पे आपके पास नॉन बी। So suppose you have this. Then prefix notation would say आप इधर से traversal start कर दें. You have some, you can kind of place dots over here. जब आप traversal में करने में जाते हैं तो ये आपके पास sentence आ गया. तो sentence के basis के ऊपर the first dot which you see over here S. तो उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं तो verb आ गया. फिर इधर आते हैं तो to आ गया. फिर इधर से आप traversal करते हैं तो then you get this. What is this noun determinant? Just give it a name. NP. NP के बाद आप यहाँ पे आते हैं तो determinant. फिर आपके पास the. फिर आपके पास N. और फिर आपके पास right. ठीक है? So if you want to place the brackets, तो उस तरीके से आप वहाँ पे brackets को भी देख सकते हैं. So as an example, this would be a bracket for N. के अंदर आपके पास flight आ रहा है. Determinant के बाद आपके पास ये the आ रहा है. ये दोनों आपके पास NP में हैं, तो आप यहाँ पे ये दोनों NP में डाल दें. V में आपके पास 2 आ रहा है, ठीक है, और S के अंदर ये दोनों आपके पास आ रहे हैं. तो S के अंदर आपके पास ये और ये आपके पास आ रहे हैं. तो ब्रैकेट नोटेशन इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगी. ये प्रीफिक्स फॉर्म में आपके पास आ जाता है. इसको पास किया जाता है. So the tools are actually what they are doing is that when they see this notation over here, they are actually constructing this tree. और उस ट्री की ट्रावर्सल आपके पास प्रीफिक्स बेस पे आपके पास हो रही है. तो एनीवेज उस केस में आपके पास इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन आएंगी. आई थिंक ये पढ़ने के एतबार से कंफ्यूजिंग है, बिकॉज रियली यू डोंट नीड ब्रैकेट्स एक्चुअली. जब एक बार उसको पता है कि ये प्रीफिक्स फॉर्म में आपके पास है, तो प्रीफिक्स में ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं होती. तो ब्रैकेट्स के बगैर भी काम करता है. बट ये कि ह्यूमन रीडेबिलिटी थोड़ी बहुत क्रिएट हो जाती है अगर आप वहां पे जाके आप ब्रैकेट्स प्लेस कर रहे हैं. बट देन देयर आर थर्ड पार्टी टूल्स. सो एज एन एग्जांपल, अगर आप एनएलटी के इस्तेमाल करते हैं और उसमें कहते हैं कि भाई मुझे ट्री जनरेट करके दो, तो ट्री आपको इस शक्ल में आएगी. लेकिन जब आप उसको कहते हैं कि नहीं मुझे इस किस्म की खूबसूरत ट्रीज बना के दें, इस किस्म की, तो इसमें फिर आपको थर्ड पार्टी टूल्स इस्तेमाल करना पड़ेंगे. वो भी अवेलेबल है, मिल जाती है आपके पास. नाउ व्हेन वी हैव दिस रिप्रेजेंटेशन, we come to a form where we say that your trees should be in something called a Chomsky normal form. Chomsky normal form follows certain rules. Whenever you have a tree, okay, you don't actually make production rules directly. But actually yes, you make production rules, but then you refine them such that those production rules are in Chomsky normal form. So basically आप ये सारी चीजें करवा रहे हैं. Okay? Yes. You carry out one additional step. The steps which are carried out are these. We are summarized over here. If you look over here, we have maybe a production rule. ठीक है? और इसके मुकाबले में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म आपके पास आ चुकी है. Means this production rule is totally valid, गलत नहीं है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज होगी कि आपने यहाँ पे 5 किए हैं, 5 क्यों हैं, 6 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है. यहाँ पे ये D1 D2 क्या चीज है, D1 D2 तो यहाँ पे नजर भी नहीं आ रहा. So actually you kind of make some treatments. सबसे पहले जो रूल है वो ये है कि राइट हैंड साइड of the production rules, उसमें आपके पास मिक्स्ड राइट हैंड साइड में टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स अगर आपके पास हो गए तो आपने उसकी सफाई करनी है. Why? There is a line over here. Terminals, non terminals. If you have a production rule like this, I'll write this as a small letters and this as capital letters. So if you have a production rule like this, X is replaced with suppose Y and Z. You're actually mixing a terminal with a non-terminal. Chomsky says, don't do it, please. Okay? Because that is like ये rule. ना इधर आता है ना इधर आता है, ये तीन दरमियान. गलत नहीं है, देख सकते हैं.
लेकिन एक सफाई जरा चाहिए होती है। रीजन बीइंग इज दैट वी रियली वांट कि जब आपने स्टोरेज करनी है ना ट्री बैंक में, तो मैं इसको स्टोर क्यों करूं? बिकॉज इफ आई कम ओवर हियर, मैं यहाँ पे प्रोडक्शन रूल्स बना रहा हूं, तो अगर इस प्रोडक्शन रूल्स में मेरे टर्मिनल्स होंगे तो दैट मीन्स बहुत ज्यादा स्टोरेज का मुझे बंदोबस्त करना पड़ेगा। आई डोंट नीड टू डू दैट। लिहाजा मैं स्टोरेज के लिए क्या करता हूं कि प्रोडक्शन रूल्स में से सिर्फ जो आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, आई जस्ट पिक दैट वन आउट। दैट मीन्स इफ यू वांट टू फॉलो इट, तो आप उसमें कह सकते हैं कि भाई मेरे पास अगर ये दोनों गिवन है, तो मैं प्रोडक्शन रूल्स में भी एक डिस्टिंक्शन करता हूं। मैं इस पार्ट को कहता हूं कि ये मेरा लेक्सिकॉन है, और ये मेरा जो है ये एक्चुअली मेरा ग्रामर है। A lexicon is linked to vocabulary. Vocabulary तो गिवन होती है, वो आप कोई भी डिक्शनरी इस्तेमाल कर लो तो उससे आपके पास वो इजीली रिकवरेबल आपके पास आ जाती है। लेकिन जो आपका ग्रामर है वो आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट है। So in that case, the easy trick is this: that if you have a mixture of lexicon and grammar, like in this case over here, तो आप जब उसके ट्रीटमेंट को देख लें कि उसने उसके ट्रीटमेंट को क्या किया है। टू के साथ उसने क्या किया? Can you see a kind of clear distinction? Like in this case, if this is the case, what will happen over here? Y perfect type. This will become clear distinction. Yes. ये मेरा लेक्सिकॉन आ गया, ये मेरा ग्रामर आ गया। तो मेरे ग्रामर में आपके पास वो तमाम के तमाम टर्म्स जो है वो सिर्फ आपके पास नॉन टर्मिनल है, और जो टर्मिनल्स हैं वो आपने इस तरीके से पुश कर दिया। बेशक आप उसके लिए एक इमेजिनरी क्या कहते हैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस, नॉन टर्मिनल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दें, और आपके पास जो इनिशियल अल्फाबेट था, क्योंकि सारे के सारे टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स आपके पास एक इनिशियल अल्फाबेट में आते हैं, तो आप वहां पे कुछ जैसे ये ओरिजिनल तो नहीं था, कैपिटल वाई वाज नॉट देयर, तो आपने क्या किया कि इधर आपने कैपिटल वाई भी एज एन इमेजिनरी अल्फाबेट आपने अपने यूनिवर्स में शामिल करवा दिया, ताकि उसके बेसिस के ऊपर ये डिस्टिंक्शन आपके पास बन जाए। ओके, दिस इज वन। द सेकंड थिंग इज सिंगल राइट हैंड साइड नॉन टर्मिनल। ठीक है, ये आपके पास ये आपके पास जो इसकी रिप्रेजेंटेशन आ रही है राइट हैंड साइड में, अगर आपके पास कोई नॉन टर्मिनल आपके पास अकेले में पड़ा है, ठीक है, तो दैट इज नॉट अलाउड। दैट मीन्स इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, द सेकंड बुलेट ओवर हियर, if you have suppose this representation, you have कैपिटल का मतलब है कि ये नॉन टर्मिनल है, दिस इज नॉट अलाउड। हाँ, ये अलाउड है। ये टर्मिनल, सिंगल टर्मिनल इज अलाउड, सिंगल नॉन टर्मिनल इज नॉट अलाउड। तो ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। फिलहाल इसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, लेकिन आप इसको अगर इस किस्म की ग्रुपिंग करवा दें द थर्ड बुलेट के साथ, तो यहाँ पे आपके पास उसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। तो सपोज यू हैव समथिंग लाइक दिस, इसमें आपके पास आ गया नंबर 1 एनपी क्या है, नॉन टर्मिनल। ये जो यहां पे नजर आ रही है किस चीज की वायलेशन है? रूल 1 की। ये मैं लिख लेता हूं यहाँ पे,
you have NP. Achha, sorry. This is not a violation. Is this a violation or not? मैं सर ये कर देता हूँ. Is this the violation? उधर मिक्स है मैंने कैपिटल में लिखवा दिया था कि कंफ्यूजन ना हो. Is this a violation? No. दो है. Yes. पहला रूल क्या कह रहा है? पहला रूल आपके पास ये कह रहा है कि आपके पास मिक्स नहीं होना चाहिए. टर्मिनल नॉन टर्मिनल मिक्स नहीं होना चाहिए. तो ये बस ठीक है ना, ये नॉन टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है. लेकिन इफ यू लुक एट द सेकंड वन, is this a violation? Yes. According to rule 2, single non-terminals is Not allowed. not allowed. तो इलाज क्या है? इलाज ये है कि अगर ये ऐसी चीज हो रही है तो काइंड ऑफ ट्रांजिटिविटी अप्लाई कर दें और आपके पास सिंपल ये चीज आ रही है कि तो आपके पास बन जाएगा NP तो ये ओवरऑल जो है ये गलत, लेकिन अब जब आप इसको देख लें आपने उसको इलाज कर दिया है. इन वे अगर आप देखते हैं हो क्या रहा है, दिस इज अननेसेसरी स्टेप. अगर आप ट्री की शक्ल में देख लें तो इसकी ट्री की शक्ल में आपको इसकी जो शक्ल नजर आएगी वो ऐसी होगी. दिस इज लाइक सेइंग इफ यू हैव n if you have nominal that is going to be replaced by n. जब आप इधर तक पहुंच गए तो डेफिनेटली आप इधर तक पहुंचेंगे ना. There is no doubt about it. And if you have, let's suppose over here as a and it's like this, A is being given as nominal and nominal is given as n, then you can simply say B it can be directly linked as n. वजह बात है कि ये भी गलत है क्योंकि इस केस में अब सिंगल दोबारा आपके पास आ चुका है. दैट मीन्स आप कोलैप्स कर देते हैं इसको, कीप ऑन कोलैप्सिंग इट, ये अलाउड नहीं है. तो आप इसको उसके साथ ठीक है. अब सही है, आपने कोलैप्स कर दिया n को a के साथ. अब अगर ये भी आपके पास अलाउड नहीं है तो कीप ऑन कोलैप्सिंग इट अपवर्ड, जाते जाएं, उस वक्त तक जाते जाएं जब तक आपके पास वो जो सिंगल नॉन टर्मिनल जो है उसका आपके पास कहीं ना कहीं पे वो ठिकाने ना लगे. तो इन दैट केस यहाँ पे आप उसमें देख सकते हैं कि भाई यू सिंपली से कि कोलैप्स इज अपवर्ड, वो इधर चला गया तो इधर दो बहन भाई आपके पास आ चुके हैं, लिहाजा आपके पास रूल आपके पास माफी चेंज हो गया है. ठीक है, तो दिस इज अ सोल्यूशन फॉर नॉन टर्मिनल. थर्ड भी इधर हो गया. ओके, और चौथा, the right hand side length should not be bigger than the other. So if you have, for instance, the last one which you can see, the case of VP as verb NP PP, right hand side का length क्या है 3. This is not allowed. Why? Because we want binary tree. तो binary tree के लिए अगर आप क्या करेंगे, आप इसमें ग्रुपिंग क्रिएट करेंगे. किसकी वजह से करनी चाहिए? बिकॉज आप अगर आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पे आप उसमें चॉइसेस कर सकते हैं कि मैं आइदर इसकी ग्रुप बना लेता हूं, आई कैन क्रिएट अ ग्रुप ऑफ V and P, आई कैन क्रिएट अ ग्रुप ऑफ NP PP, आई कैन नॉट क्रिएट, हाँ वैसे उसूली तौर पे तो एक ट्राइंगल आपके पास बन रहा है ना, लेकिन इसको आप इसके साथ नहीं मिला सकते क्योंकि वो उस फॉर्म में आने देगा. जस्ट गिव इट सम नेम. जी
ऑर्डर मैटर करते हैं। यस, ऑर्डर इसमें मैटर करता है। बाय द वे, रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसमें जाते हैं, इसमें इधर आप जाए, तो इसमें आपके पास क्या होता है, द ऑर्डर इज एक्चुअली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये पहला। और जब आप एक जगह पे लॉक हो जाते हैं तो उधर फिर आपके पास लेफ्ट टू राइट इज द रूल, which could be a little bit confusing. For instance, अगर आप उसमें उर्दू में काम करते हैं, so as an example, if you take the case of our classic example, जिसमें हम कहते हैं बिल्ली चूहा खाती है, ठीक है, बिल्ली चूहा खाती है, and we say that this is a noun, verb, sorry, noun, verb, and हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग को क्या बोल जी, क्या, तो अब उस केस में जब आप ये रिप्रेजेंटेशन करवा दें प्रोडक्शन रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज एक्चुअली यस, यानी आपने फिर भी लेफ्ट टू राइट करना होगा, हालांकि आपके पास राइट टू लेफ्ट आपके पास क्योंकि the rule is not linked to a language, the rule is an algorithm। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जरा आपने वो सीक्वेंस स्वैप करना होगा, बट ये कि इट स्टिल मींस कि ये लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, तो उसमें आपके पास वो नहीं होगा। अच्छा, अब अगर आपने G1 कर दिया तो उस केस में फिर आपके पास क्या आ जाएगा, VP would be coming as G1 PP and G1 would then be VNP, everything fine। And if you take this as the case, then आपके पास आ जाएगा VP is replaced with V, G2 and G2 is replaced with NP and PP. Again, this is also fine. Okay? So ये grouping, जाहिर बात है यहाँ पे तो मैंने just for illustration purpose कर दिया है, लेकिन अब आपने वहाँ पे actually देखना है कि ये grouping make sense करता है कि नहीं करता। So as an example, noun phrase and preposition postposition PP, तो रकम ये भी ठीक है। preposition आपको याद है preposition क्या होते हैं, पहले से कुछ वो जो नाउन को वर्ब से, सब्जेक्ट को वो एडवर्ब होता है, नहीं, नाउन को जो वर्ब से जोड़ते हैं वो नाउन को जो वर्ब से जोड़ते हैं वो कंजक्शन क्या वर्ब in preposition इन प्रोपोजिशन है, हाँ, ओवर अंडर इन आउट, ये क्या yes पास ये preposition और कुछ पोस्ट पोजिशन भी होती है, आई डोंट नो, आफ्टर पोस्ट पोजिशन नहीं सर after to conjunction अच्छा, ज्यादा मेरा ख्याल में वो प्रीपोजिशन ज्यादा कॉमन है, बट एनीवेज ये आपकी बात होती जा रही है। सो अब आई डोंट नो, आई मीन उसके कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वर्ब नाउन फ्रेज, सो आई थिंक दैट मेक्स सेंस, दैट इज वैलिड। ये ओवरऑल आपके पास होते भी है और वो आपके पास आता है कि दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ वर्ब फ्रेज। सो ये ग्रुपिंग आप बना रहे हैं, दे मस्ट बी मीनिंगफुल। बेहतर ये है कि अगर आप उसको किसी रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं तो उस रिप्लेसमेंट का कोई मीनिंगफुल, यानी इट मेक सेंस, ऐसी चीज की ग्रुपिंग ना हो जो मेक सेंस नहीं करता। ओके, तो उस तरीके से फिर आप ये कर सकते हैं, लेकिन खैर ये जो है कि whether it should be this or this is now dependent upon the language। CNF फॉर्म में it doesn't matter। CNF कहता है कि भाई आपके पास अगर ऐसी कोई चीज है तो आपने लेंथ 3 वाली चीजों को आपने जाके लेंथ 2 में कन्वर्ट करना है, और जो भी तरीका है ग्रुप ये हो या ये हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन चीजों को मेंशन करना होगा। एंड देन दीस दैट्स इट, ये इसके बेसिस के ऊपर आपके पास आ जाता है चीजें with this। Now let's look at a case where we construct trees। Okay, trees के लिए हम एक एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम CKY parsing कहते हैं, and actually I'll give it a shot।
with exactly this, but इसकी जो अंग्रेजी है, आप बताएं ये ठीक है या कुछ और करें? पर आप ही बताएं। I am sir. जी? I am sir. अभी पार्ट ऑफ स्पीच भी बताएं। Noun or pronoun, subject. ये क्या है? क्या होगा? आई प्रोनाउन होगा। Noun, yes. चलिए ये कर देते हैं, प्रोनाउन हो गया। एम वर्ब है, हाँ ये वर्ब है। और आपके पास था, चलिए ठीक है। नाउ अगेंस्ट दिस, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। The first step is basically that if you want to, suppose, make a production look out of it, literally have this. Is it in CNF form? ठीक है, मेरा सेंटेंस ये है ना, आई एम सर्वर, अब इसको CNF फॉर्म में लेके जाए, तो अब ये किसकी ग्रुपिंग करें? प्रोनाउन वर्ब की या वर्ब नाउन की? मेरे ख्याल में अगर इधर सेंस बनाना चाहें तो दोनों से। वर्ब नाउन पे अप्लाई होता है, तो जब भी आपके पास वर्ब आएगा तो वो नाउन के साथ जब आप उसमें करेंगे तो मुझे इट मेक सेंस कि आप इसकी ग्रुपिंग करवा दें। तो मैं इसमें कह देता हूँ कि चलिए इसको इसके बजाय ऐसे कर देता है, एस इज प्रो वर्ब फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज इज नाउन vegan. Now is this in CNF form? Yes. ठीक है, so that means you can literally start with any sentence, convert it into just part of speech, mention it like this, बेशक उसमें 10, 15, 20 जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, and then you try to apply some logic. दो चीजों की लॉजिक आपने बनाई और जाहिर बात है वो एडजेसेंट चीजें। सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी वैसे फायदा नहीं, क्योंकि आप इस तरीके से प्रोडक्शन रूल कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इट हेल्प्स इफ इट हैज सम मीनिंग टू इट। पहले आप देखेंगे कि भाई मैं प्रो और वी की ग्रुपिंग बनाऊं कि ना बनाऊं, इफ इट इज सीम्स वैलिड बस बना दें, अगर उसमें आपको नहीं नजर आता तो फिर आप इसकी दो कर रहे हैं। तो हर जो दो एडजेसेंट चीजें होती हैं तो उसमें आप ग्रुपिंग बना सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देख रहे हैं कि जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें कोई स्ट्रक्चर होता है, and you basically want something which is close to the sentence structure. So suppose we say कि हमारे पास ये आ गया, so this is step one. सर इसमें अगर टर्मिनल लोअर टर्मिनल्स को देखें हाँ, तो कैसे देखेंगे? तो टर्मिनल्स को अगर आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं तो मैंने वैसे लाया नहीं हूँ, बिकॉज टर्मिनल्स आर ऑलरेडी सेपरेटेड, बट वो फिर आपके पास आ गया कि आपके पास आ गया प्रो इज आई, वी इज एम and n is 7. They are there, but चूंकि हमारे पास हमने उसमें वो सेपरेशन की है, ये मेरे पास वो ग्रामर आ गया, this is my grammar and this is my lexicon. सर अगर सेंटेंस में 4 prepositions है, अगर 4 prepositions हैं, ग्रुपिंग फिर भी बनाना पड़ेगी, दो की, ठीक है। सो ओके, ये अच्छा एग्जांपल है प्रोपोजिशन का, तो मुश्किल होगा, लेकिन सपोज वी हैव समथिंग लाइक दिस, मजेदार खाना था, ठीक है। तो डिनर क्या है? नाउन।
ये है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ही एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है वर्ब के साथ एडवर्ब। इधर से ये अच्छा, बाय द वे पार्ट ऑफ स्पीच याद करने के लिए आप 4-5 चीजें याद कर दें, ज्यादा गहराई में मत जाए। ओके, तो आपने इन 4-5-6 आइटम्स के अलावा अगर कोई आपको ग्रामर की कोई चीज आता तो आप कुछ भी लिख रहे, डजंट मैटर, बट इन ये जो बेसिक चीजें नाउन और वर्ब में आपस में मिक्सअप ना हो, एडवर्ब और एडजेक्टिव में आप मिक्सअप ना हो, एक ये आर्टिकल्स होते हैं एन द, इसमें मिक्सअप ना हो, बाकी खैर। ओके, अच्छा अब इस तरीके से अगर आप देख लें एडजेक्टिव एडजेक्टिव, सपोज मैं कहता हूँ वेरी 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 वेरी, बहुत मजा आया, ठीक है ना, अब उसमें लॉजिक यही होगी आपके पास कि आपने फिर वो सारे के सारे एडजेक्टिव जो हैं वो आपने उस किस्म की हायरार्की पे बिल्ड अप कर, अब उसमें लॉजिकल जो स्ट्रक्चर आपके पास आ रहा है वो अजीब व गरीब भी बन जाएगा, बट ये कि सीएनएफ फॉर्म में लाने तो पर यही तरीका होता है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पर आपके पास आ जाता है कि जब ये आपने डिफाइन कर दिया, अब आपने ट्री बनानी है। We are now interested to make a tree. And the second step is then to kind of follow through with this algorithm. It is a kind of a upper triangular matrix. You write at the top, I am Sarmad, and with respect to that, you construct a tree, not a tree actually. Okay, it will look something like this. तो इधर आपके पास एक टर्म आ गया, ओके, इधर भी आपके पास एक टर्म ऐसे आ गया और एक आपके पास ऐसे आ गया। This kind of tree will be okay. अब आपने क्या करना है कि इसका जो सबसे बॉटम राइट मोस्ट पार्ट है, मींस go down and right here to this part over here. And इसमें आपने फिर क्या करना है कि आपने इसमें ऊपर की तरफ जाना है। The idea would be the flow which looks something like this. इधर जाएं, ठीक है, जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं फिर इधर जाएं, फिर then you go to address this part, ठीक है, इस किस्म की, इस किस्म की, इस किस्म की, और इस तरीके से फिर इस किस्म की। So the movement which is taking place actually, अगर आप उनको देख लें कि वो मूवमेंट जो आपके पास है, अगर मैं यहाँ पे सर्कल्स प्लेस करूं तो you may see that because of this we can have a kind of a tree. ये आ गया, ये दो पार्ट्स आपके पास ये आ गए, और इस केस में आपके पास ये जो दो पार्ट्स आपके पास है, इसके एक्सट्रीम एंड ये वाला है ना, इस किस्म का। The only thing is this is the tree which could be made by the एक मिसिंग है, ये वाला दोबारा प्लेस करता है इधर तक, ठीक है। This is for this one and this is for this one. ट्री है कि नहीं है? ट्री तो है, बाइनरी नहीं, पूरा नहीं है। You can see that there is a mix up. Okay, इधर साइकिल आपके पास आ गया है। नाउ इसमें हमें अब enable disable करना है। ट्री की शक्ल आपके पास ये है। It is starting with this, going to all this direction, but maybe some of these edges need to go. Which edges are going to go? वो आपको ये algorithm के जरिए से आपको define हो गया। Now we come to this bottom over here, and यहाँ पे हम कहते हैं Sarmad. Sarmad is, according to the very original representation, it is a noun. Okay. Okay. In fact, अगर आप इसकी ट्री की शक्ल में जाएं, ये दूसरी एग्जांपल है, बट मैं उधर से मैं इसी बुक में करवाता हूँ, आपके पास ना होगा क्या। अब
दैट इज फाइन। अच्छा, अब एम की तरफ आ जाते हैं। एम क्या चीज है? verb. एम इज अ वर्ब। तो एम की तरफ जब आप जाते हैं तो इधर आपके पास आ गया वर्ब। हायरार्की में according to the hierarchy, they both need to be linked with this. That means आप अगर डायरेक्शन में देख रहे हैं तो नेचुरल ग्रुपिंग किसकी बन रही है? इधर ग्रुपिंग आपके पास आ गई कि भाई ये ग्रुप पर जाएंगे तो ये आपस में लिंकअप होंगे। अब इसको कोई नाम दें। What name did we find out over there? हमने VN को जो नाम दिया था वो हमने VP दिया था। ओके, बाय द वे वहां पे एक एम्बिग्युइटी थी कि हम VN करें या दूसरा करें। इधर हमने एक डिसीजन फैक्टर लाया था बट उसमें हमने डिसाइड किया था कि VN की ग्रुप बनाते हैं तो वो मेरे पास VP आ गया। तो जब भी ऊपर आएंगे तो आपके पास यहाँ पे VP आ गया। दैट इज फाइन। तो सो फार ये चीज आपके पास आ गई और मेरे पास यहाँ पे जो ट्री की शक्ल आ गई VP। अब उसके बाद आते हैं आई की तरफ। क्या चीज है? इट्स अ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के बेसिस के ऊपर ये आ गया, रिमेंबर द मूवमेंट। मीन्स अब यहां पे जरा देखें कि हमारे पास प्रोडक्शन रूल में ऐसी कोई चीज है जो प्रो और वी को ऊपर मिलाती हो। मतलब you're actually looking for this something which links pro and v। नहीं है ना? लिहाजा अगर नहीं है तो that means this is out, it doesn't exist। so that means you have pro over here, you have nothing over here, that means this is not there। अब आप जाएं, क्योंकि यहां पे कुछ आपको मिला नहीं है तो अब आप जाएं इसको और इसको आपस में मिला दें। डू यू हैव एनीथिंग which links pro with VP? Yes, we have that and that is your sentence। यहां पे आपके पास S आ गया, लिहाजा आपके पास वो जो ट्री की जो शक्ल आपके पास बन गई वो आपके पास ये बन गई। ठीक है? Do you think you can do this yourself? Let's just go and practice it. वेरी सिंपल। आप इधर से स्टार्ट करें, इससे ऊपर जाएंगे तो इसके लिए आपको इसकी इनपुट चाहिए। तो मैं इधर काम नहीं कर सकता जब तक मेरे बॉटम के दो पिलर्स बने हो, तो मैं जाके इस पे काम कर सकता हूं। अच्छा, तो लिहाजा चूंकि मैं इस पे नहीं है तो मैं जरा डिफर कर लेता हूं, पहले आप इस पे काम करें। तो जो बेसिक्स आपके पास है, मतलब आपके पास, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करवा रहा हूं, ये चीजें कहां से आ रही हैं? ये जो बिल्कुल बॉटम वाले जो ये हैं, ये सारे के सारे आपके इधर से आ रहे हैं। जस्ट डू दिस। उसके बाद आप जा रहे हैं, जो इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आपके पास आ रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। मीन्स आपने इनका इलाज कर दिया, ये टर्मिनल्स थे। अब आप इसे एक लेवल इस तरीके से आए, ट्री की शक्ल में आप इधर से इस लेवल पे आ रहे हैं, तो आप इनका इलाज करें। तो इसका चीज आपने कहां पे ढूंढना है? इसकी जितनी भी चीजें हैं आपने इसके हायर लेवल पे जाके, तो फिर जब ये भी हो गया तो फिर उसके बाद इसका इलाज हो गया, इसका इलाज हो गया, फिर आप इसकी तरफ आए। यानी आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है,
तो ट्रायंगल मैट्रिक्स में आप इस तरीके से जा रहे हैं, फिर इस तरीके से जा रहे हैं, फिर इस तरीके, जो ये वाला डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं, ये हर एक लेवल आपके पास यहाँ पे ये उसके लिए जो रूल्स आपने जाके पकड़ने हैं वो उसी तरीके से आपके पास आए। ये सबसे लाइन नंबर 3 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 1 है। तो इस तरीके से जाएं, लाइन 3, लाइन 2, लाइन 1, नीचे वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन तक। आपको जहां पे भी आप जाएंगे तो वहां पे लाइंस की ग्रुपिंग होती हैं, तो वहां पे आपको इसके आंसर्स मिलेंगे। जब आप आएंगे तो उसके लेफ्ट साइड और बॉटम साइड, लेफ्ट साइड और बॉटम साइड, उसको ढूंढें। दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो जब वो आ गया तो इफ दैट इज फाउंड, प्लेस इट। एक ट्रिक इसमें आता है कि कभी कभार आपके पास 2 आंसर आ जाते हैं। यहां पे मेरे पास एक केस आया, नो आंसर, इधर 1 आंसर, इधर 1 आंसर। कभी कभार 2 आंसर आते हैं, 2 आंसर। वो एग्जांपल आपने आई एम सर्वंट बताया है तो उसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्लाइड्स में देखें, स्लाइड्स में यहाँ पे अल्टीमेटली एक ये वाला केस नजर आ रहा है। तो ऊपर वाले डब्बे को जरा देख लें, वहां पे 3 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। मींस समटाइम्स यू गेट मल्टीपल ट्रीज। इस केस में एग्जैक्टली 1 ट्री बन गया, लेकिन समटाइम्स यू गेट मल्टीपल ट्रीज। तो जब आपके पास एम्बिगुइटी आ जाती है ट्री में, तो वहां पे फिर हम प्रोबेबिलिटी डालते हैं। ये हम कल करेंगे, ओके। बट फॉर द मोमेंट, इंशाल्लाह, फॉर द मोमेंट दिस इज योर एल्गोरिथम फॉर CK पासिंग, जिसमें हम सेंटेंस टू ट्री बनाने में हमारे पास ये हेल्प होता है। सर इसमें जो ग्रुपिंग वाला पार्ट है, अब वो लेट्स सपोज आप अपनी सेंस के हिसाब से BN बनाते हैं, कोई और सिनेरियो आता है कि जिसमें मुझे लगता है कि ये प्रो और वी होना चाहिए, तो उस केस में तो फिर आपकी ट्री अलग बनेगी, मेरी अलग बनेगी। यस, अगर वो ग्रुपिंग हो गई तो आई थिंक आप ट्राई करके देखें, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ऐसी है, यू विल हैव समथिंग ओवर हियर, प्रो, वी एंड एन, ठीक है। यानी उस इंटरप्रिटेशन की वजह से यहां का जो बोझ है ना, वो उसके ट्री के राइट हैंड साइड से आपके लेफ्ट हैंड साइड चला गया। ये क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे हमने जो ग्रुपिंग करनी थी, उस ग्रुपिंग में हमारी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर वी हैड टू मेक अ डिसीजन। नाउ इफ यू आर नॉट श्योर whether this is correct or this is correct, then in that case, बता दो। Yes. अच्छा, in that case what you do is this. अगर आपने दोनों ग्रुप्स बनाने हैं सपोज, तो दूसरे ग्रुप को कोई नाम दें, और वो ग्रुप होगा अगर मैं इसके बजाय इसकी ग्रुपिंग बनाना चाहता हूं, ओके, जस्ट गिव इट अ नेम, पीबी कर देते हैं। तो पीबी इज एक्चुअली प्रो एंड बी, और फिर सेंटेंस जो आपके पास आ गया, so the sentence can be either this मैंने क्या नाम दिया, प्रो भी कर दिया था, वी। Yes. अच्छा, फिर सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस इज आइदर दिस और, अब एम्बिगुइटी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि भाई जब ये आएगा तो एम्बिगुइटी आएगी, बाकी कहीं भी एम्बिगुइटी नहीं है, इधर एम्बिगुइटी आएगी। इस एम्बिगुइटी को रिजॉल्व करने के लिए आप जरा ऐसा करें, ये इधर करें, और इधर लेट्स सपोज करें 0.6, और इसके साथ करें 0.4, ठीक है।
जहां पे एम्बिग्युइटी आएगी वहां पे आप प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस करोगे। अब आप एक्सपर्ट हैं, आपने एक किस्म की ग्रुपिंग की और आप जैसे सोच वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने आपके वाली ग्रुपिंग की है, तो वो वाली लॉजिक कितनी बार आई है? 0.6 टाइम्स। दूसरा आपने किया, आप भी एक्सपर्ट है, आप और आपके ग्रुप ने कितनी बार ये वाली ग्रुपिंग की है? 40%। अब आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा सेंटेंस ये है, ये मेरा सेंटेंस नहीं है, ये ग्रामर है। अब आपने इधर जो भी सेंटेंस दिया, आपके पास दो ट्रीज बन गई। पहले ट्री की प्रोबेबिलिटी निकालें, दूसरी ट्री की प्रोबेबिलिटी निकालें, जिसकी ज्यादा हो वो यूज कर दें। अब आप उसमें कहेंगे कि चलो फिर उस केस में तो फिर ये हमेशा जीतेगा, दिस विल ऑलवेज विन बिकॉज इसकी ज्यादा है, तो उस केस में इसको रैंडम कर दें। जनरेट अ रैंडम नंबर, सपोज 0.4, and check where 0.4 is going to lie. So this is 1, this is 0, this is 0.6. ये लॉजिक हम पहले से कर चुके हैं। अगर आप इसको देख रहे हैं, ये मेरे पास 0 से लेके 0.6 तक और उसके बाद मेरे पास 1 आ गया। मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ, सपोज मैं इधर उसने जनरेट किया, तो ठीक है, हम here। अब आप एक दूसरा रैंडम नंबर जनरेट कर दें, वो लाइन कर दें, अगर वो आपके पास 0.7 आ गया, इट इज हियर, दैट मींस दिस इज अबाउट दिस, व्हाट सेलेक्ट कर दें, कीप ऑन डूइंग दिस। तो आप रैंडम ट्री से जनरेट कर सकते हैं। ये एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में, तो वही लॉजिक आप यहाँ भी मिला सकते हैं कि भाई फिर ये ट्री करें या ये ट्री करें। तो इन दैट केस दिस विल देन बिकम द लॉजिक ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक सीएफजीज, और ये आपके पास इंट्रोड्यूस किया जाता है एवरीवेयर। इनफैक्ट इट इज ऑलरेडी प्रोबेबिलिस्टिक, बिकॉज हम यहाँ पे कहते हैं कि ये 1 है, ये 1 है। इट्स 100% प्रोबेबल कि ये चीज ही आपके पास है। इस केस में देख सकते हैं, तो इस केस में ये 0.6 है, 0.4 है या 0.5 है, 0.5 है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या चीज सर इस टाइप पे फिर डोमेन नॉलेज भी तो जरूरी होगी। होती है। इस वजह से वो होता है ना कि आपके पास ये जो प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, दे रिप्रेजेंट द ग्रामर। सो डोमेन एक्सपर्ट्स हैव सिटन टुगेदर और उन्होंने एक प्रोडक्शन ग्रामर बनाया होगा फॉर अ सर्टेन क्लास ऑफ लैंग्वेज, और वो फिर आपका जो डोमेन हो गया, तो फिर उस केस में अगर आपने सपोज ग्रामर चेकिंग करनी है, तो आप वो वाले प्रोडक्शन रूल्स इस्तेमाल करेंगे जो डोमेन एक्सपर्ट ने आपके लिए एस्टैब्लिश किए हुए हैं। That's how this logic works. तो ये जो प्रोडक्शन रूल हैं, ये जैसे हम कॉर्पस हमारे बने पड़े हैं, इस तरह कोई बिल्डिंग Yes, बने बने पढ़ोगे। जो एक्सरसाइजेज आप करेंगे उसमें आप लोग बने बने प्रोडक्शन रूल्स के साथ काम करेंगे। बट अगर आपने प्रोडक्शन रूल्स अपने बनाने हैं, यू कैन सी, ये आपके सामने एक एग्जांपल हो गया, हमने अपनी तरफ से एक प्रोडक्शन रूल बनाने की कोशिश की है। ठीक है, पश्तो में नहीं आप ये पश्तो में नहीं, आपके सामने आए सहमति है। पश्तो उर्दू में करना है तो हमने वो किया था, हमने एक्चुअली ये किया था, मैं ये एक्चुअली स्टडी थी, वो वैसी मजे के लिए किया था। उसमें हमने देखा पश्तो में एक पोएट है गनी खान, नाम सुने? यस। गनी खान, और खैर ये किसी भी पोएट के साथ ऐसे होती है, लोगों ने मंसूब किया होता है कि ये फलां की शायरी है। अब आपने कैसे डिटरमिन करते हैं कि ये वाकई गनी खान है कि नहीं है? उसकी यूनिक ग्रामर, ग्रामर। तो अगर लेट्स सपोज उनका वो लकब जो होता है ना, वो जानान है, जानान, वो तो मैं भी किसी शेर के आखिर में जानान लिख दूंगा तो ये गनी खान का तो शेर नहीं बना ना। तो vocabulary is not important, the sentence structure। अगर उन्होंने कुछ सोचना था तो ज़ाहिर बात है वो जब वो शेर लिखते हैं तो उनके दिमाग में कोई लॉजिक तो होगी ना, वो एक खास स्ट्रक्चर के साथ वो शेर लिखते होंगे, और वो स्ट्रक्चर ये वाली चीज है। तो वी ट्राइड समथिंग लाइक दैट कि हम किसी CFG फॉर गनी खान बना लें। एक्चुअली दिस एग्जिस्ट CFG फॉर कुरान पाक, ये बने हुए हैं, मेरा रिसर्च पेपर फॉर दैट। आपके पास पोएट्री, रिलीजियस टेक्स्ट,
different types of articles, grammar for different conventions, ये आपके पास exist करते हैं. Poetry is specifically difficult because poetry में आपके पास structure जो होता है वो एक खास you can say word length और sounds, उसके syllable की तादाद और उसके word की जो structure, एक खास logic उसमें उसकी तरतीब होनी चाहिए. अदरवाइज उसको फिर वो क्या कहते हैं आजाद नज़म, और एक आपके पास गजल होता है और इसकी सब चीजें बाकायदा क्लासेस होता है. तो ये एक्चुअली स्टडीज है कि कोई चीज अगर आप कहते हैं कि ये कौन सी टाइप ऑफ पोएट्री है, ये आजाद नज़म है, ये गजल है, ये नज़म है, ये क्या चीज है, तो दे एक्चुअली यूज दीज सीएफजीज एट द बैक एंड. तो क्या होगा, एक पोएट्री गिवन है उसकी सीएफजी बनाएं, फिर कोई दूसरी पोएट्री आ गई उसको आप देखते हैं कि ये CQY हो रही है कि नहीं हो रही. अगर हो रही है तो दैट मीन्स आप कहते हैं कि हाँ ये जो पोएट्री है ये आपके फला प्रोडक्शन रूल्स के मुताबिक बनी हुई है. ये उर्दू लिटरेचर या किसी भी लिटरेचर में आप उसमें उस्ताद शागिर्द वाले कह सकते हैं कि भाई शायर होगा वो अपने शागिर्द से कहेगा कि नहीं 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 तुमने शेर गलत लिखा है, तो CQY पासिंग करके जो है उसको बता देगा कि यहाँ पे आपने ये गलती की है. एग्जैक्टली अगर आप देख लें कहीं पे पिन पॉइंट भी हो रहा है. दिस इज जस्ट वन पार्ट वेयर वी कंस्ट्रक्ट अ ट्री, बट जहां पे ब्रेक हो रहा है, इफ समथिंग इज नॉट बीइंग कन्वर्टेड इन अ ट्री, यू कैन एक्चुअली फाइंड दैट स्पॉट कि वो किस जगह पे आपके पास ब्रेक हो रहा है. सो एज एन एग्जांपल, अगर लेट्स सपोज हमें ये भी ना मिलता, तो मुझे तो पता है ना इधर से ये बन गई, तो या तो इधर में मसला है या फिर इधर में मसला है. तो I can exactly specifically pinpoint to a student over here कि इस जगह पे आपने गलती की, जाए उसको ठीक कर दें. तो it can be used for multiple purposes like that. Okay. Anyways, इस चीज़ पर प्रैक्टिस करेंगे. We can conclude.